بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹے بات کی تھی، پیپر پیٹرن سمجھا تھا کہ اسلامیات کا جو 9th کلاس ہے اس کا پیپر کیسے آتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس ٹاپک کا عنوان ہے تعارف قرآن مجید۔ بولیے بیٹے کیا ٹاپک ہے؟ تعارف قرآن مجید۔ لیکن اس ٹاپک میں 2 حصے ہیں، ایک حصہ لانگ کویسچن کا ہے اور ایک حصہ شارٹ کویسچنز کا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم شارٹ کویسچنز پڑھ رہے ہیں، ان میں لانگ کویسچن آج کے ٹاپک میں نہیں ہے، یعنی یہ جو باتیں ہم ذکر کریں گے یہ آپ کو بطور لانگ نہیں آئیں گی بلکہ بطور شارٹ آئیں گی، اور اس چیپٹر میں ایک لانگ ہے وہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ لیکن ذرا دیکھیے گا بیٹے، سب سے پہلا جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور پہلی لائن ہے وہاں پر بیٹے آپ خود ایک ہیڈنگ لکھیں گے، قرآن کا لغوی معنی۔ لکھیے بیٹے بک کے اوپر، شاباش، قرآن کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی قرآن کا لغوی معنی، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید کا لغوی معنی، یہ بیٹے پہلی ہیڈنگ شاباش اپنی بک کے اوپر لکھ لیجئے، اور اس کو ادھر دیکھو میری طرف بیٹے، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی ڈکشنری دیکھی ہے بیٹے؟ ڈکشنری، انگلش کی ڈکشنری بھی ہوتی ہے، اردو کی ڈکشنری بھی ہوتی ہے، عربک کی بھی ہوتی ہیں، ہر زبان کی ڈکشنریز ہوتی ہیں۔ کسی بھی ورڈ کا ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے، بولیے کیا؟ کسی بھی لفظ کا ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ لغوی معنی۔ لغوی معنی، لٹریری میننگ، لغوی معنی، ڈکشنری میننگ۔ اچھا، قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جو کارا آ سے بنا ہے، انڈرلائن کریں ایم سی کیوز، شاباش بیٹے، کارا آ سے بنا ہے۔ قرآن کا لفظ کارا آ سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا۔ دیکھیے بیٹے لکھا ہوا بک میں، بولیے بولیے، قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ بولیے، پڑھنا۔ اچھا، قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ بیٹے یہ لغوی معنی ذرا بک سے بھی ریڈ کر دیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش بیٹے ریڈ کیجئے، اونچا بولیے جی۔ لفظ قرآن قرات سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ بیٹے سمجھ آ گئی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بولیے ذرا، بولیے بتائیے مجھے، قرآن مجید کا جو لفظ ہے بیٹے یہ کس سے بنا ہے؟ کارا آ سے بھی بنا ہے، اور دوسرا لفظ جو آپ کی بک والے نے لکھا وہ لکھا ہے قراءتن۔ یہ لفظ بولیے کیا ہے؟ قراءتن۔ تو لفظ قرآن قراء سے بنا ہے، قراءتن سے بنا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ اچھا آگے بیٹے، آپ نے تو قرآن مجید کو سب سے زیادہ چونکہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے ہم اس کو کس کا نام دیتے ہیں؟ قرآن۔ اچھا، ایک ہوتا، اب یہاں جہاں لکھا قرآن کہا جاتا ہے، یہاں سیکنڈ لائن میں اب ہیڈنگ لکھیں گے قرآن کا اصطلاحی معنی۔ جہاں تک ریڈنگ ہوئی وہاں تک لغوی معنی، اب لکھیں گے قرآن کا اصطلاحی معنی۔ اچھا بیٹے، اصطلاحی معنی کون سا معنی ہوتا ہے؟ بیٹے کسی بھی لفظ کا وہ معنی جو جنرلی پبلک سمجھے۔ بولیے کیا؟ جو جنرلی پبلک سمجھے۔ مثلا قرآن کا معنی تو ہے پڑھنا، تو جب قرآن کا لفظ مسلمانوں کے سامنے لیا جاتا ہے، مثلا میں ابھی آؤں یا کوئی اور ٹیچر آئے وہ آپ کو کہے کہ جاؤ قرآن اٹھا کے لاؤ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ قرآن اٹھا کے لاؤ، پڑھنا اٹھا کے لاؤ، بلکہ آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ کتاب اٹھا کے لانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے میں اتاری؟ 23 سال کے عرصے میں اتاری۔ آپ وہ کتاب اٹھا کے لے آئیں گے۔ مثلا بیٹے حج کا معنی ہے زیارت کرنا۔ بولو کیا حج کا کیا معنی ہے؟ لغوی معنی زیارت کرنا ہے۔ اب میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ میری زیارت کر رہے ہیں، ہم ٹیچر کی زیارت کرتے ہیں، والدین کی زیارت کرتے ہیں، تو کیا یہ حج ہو گیا؟ نہیں۔ مسلمانوں کے سامنے جب حج کا نام لیا جائے گا تو اس سے مراد کیا لیں گے؟ کس کی زیارت کرنا حج ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا حج ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ روزے کا معنی ہے رکنا، تو بیٹے میں رکا ہوا ہوں تو کیا یہ روزہ ہو گیا؟
नहीं, किस चीज से रुकना? वो खाने पीने सुबह शाम सारा दिन रुके रहना, इसको क्या कहते हैं? तो एक लफ्ज का माना होता है लुग़वी और एक माना होता है इस्तिलाही। तो लुग़वी माना कुरान का है पढ़ना, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद। अच्छा, तो इस्तिलाही माना क्या हुआ बेटे? वो किताब जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़ुबान में 23 साल के अरसे में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारी, उस किताब को क्या कहते हैं? बेटे बोलिए ज़रा, क्या लिखा हुआ है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल हुआ। कुरान मजीद ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात व वाक़ियात और ज़रूरत के मुताबिक नाजिल फरमाया। शाबाश बेटे, जहाँ लिखा हुआ है ना ये 23 साल नाजिल फरमाया, बस ये आगे बोलते जाएं बेटे, बोलते जाएं। ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रश्द व हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। किताब का मौज़ा है कि इसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता बल्कि हर लम्हा नई लज़्ज़त और नया सुरूर हासिल करता है। अच्छा, ये जो इस्तिलाही माना है ना, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ, बस यहाँ पे ये इस्तिलाही माना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जहाँ लिखा हुआ कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे में नाजिल किया, यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। तो 23 साल के अरसे में, ये MCQs हैं बेटे, अंडरलाइन कर लीजिए। 23 साल के अरसा में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इनमें लॉन्ग कोई नहीं है, सब शॉर्ट अलग अलग। अगला शॉर्ट है, ये किताब महफूज तरीन किताब। बेटे सुनिएगा, बड़ी सादा सी बात, इसमें एक ही चीज़ हमने याद करनी है इस पॉइंट में, और वो कौन सी? वो ये कि काकेओ अल्लाह ताला ने जितनी की भी नबी और रसूल भेजे 1,24,000। तो जब वो टीचर थे, 7 निसाब के तौर पर कि कौम को पढ़ाना क्या है, किताब भी उतारी थी, सहीफ़े उतारे थे, मगर उनमें से कोई किताब और सहीफ़ा आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, क्योंकि उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद आपको अता किया, तो कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने खुद। आपसे बेटे ना पूछा जाएगा शॉर्ट कि कुरान मजीद की हिफाजत पर एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें, अंडरलाइन करो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेटे मेरे साथ तर्जुमा बोलो सारे, क्या लिखा हुआ है? बेशक हम ही ने इस ज़िक्र को नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत। बेटे याद हो गया? दूसरा शॉर्ट भी बताइए। पहला शॉर्ट याद हो गया, दूसरा भी याद हो गया। आगे बढ़ो बेटे, तीसरा शॉर्ट कुरान मजीद की आलमगीरियत। बेटे सुनिए, आलमगीरियत का मतलब, इधर देखो मेरी तरफ। पहले ना बेटे जितने भी नबी और रसूल आते थे, तो फॉर एग्जांपल लाहौर एक शहर है, तो अल्लाह किसी रसूल को सिर्फ लाहौर के लिए भेजता, किसी रसूल को सिर्फ कराची के लिए भेजता। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, उस वक्त लाहौर कराची थे नहीं। मिसाल के तौर पर इलाके, पाकिस्तान के लिए रसूल भेज दिया, कनाडा के लिए भेज दिया, अमेरिका के लिए भेज दिया, बरतानिया के लिए भेज दिया, मिस्र के लिए भेज दिया, इराक़ के लिए भेज दिया, कुवैत के लिए, सऊदी अरब के लिए। ये बेटे ममालिक, हर नबी लिमिटेड एरिया। फिर कौमें होती थी, फॉर एग्जांपल गुज्जर हैं, अराई हैं, जट हैं, बट हैं, ठीक है। तो बेटे हर कौम के लिए अलग नबी, गुजरों का अलग नबी। यानी उस वक्त गुजर होते नहीं थे, मगर मैं मिसाल दे रहा हूँ। बस बनी इसराइल था, बनी इसराइल कौम थी, उनके लिए नबी आ गए। कौम आद थी, आद के लिए नबी आ गया। समूद थी, समूद के लिए नबी आ गया। लूत थी, उनके लिए नबी आ गया। तो मतलब कहने का ये कि छोटी छोटी कौमें, अल्लाह कौमों के लिए नबी भेजता है। लेकिन जब बारी आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको बेटे किसी ख़ास स्पेसिफिक कौम के लिए नबी बनाकर, कि आप सिर्फ बटों के नबी हैं, आप भटियों के नबी हैं, आप जटों के नबी हैं, आप क्या हैं? आप सारी कौमों के नबी हैं। फिर अगली बात, स्पेसिफिक एरिया के लिए भी नबी और रसूल नहीं हैं। आप सिर्फ सऊदी अरब के नबी और रसूल, सिर्फ मुसलमानों के नबी और रसूल। आप इस कायनात में जितनी कौमें बसती हैं, जितनी इंसान, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जितनी मखलूक़ात आई, आप जानवरों के भी नबी हैं, पत्थरों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं, हर जितनी मखलूक़ात क्रिएशन अल्लाह की। तो अल्लाह ने फिर जो किताब नाज़िल की ना, उस किताब में भी हिदायत सिर्फ किसी एक कौम के लिए, बोलो बोलो, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक मखलूक के लिए नहीं, बल्कि ये जो कुरान है ये भी आलमगीर है। आलमगीर मीन वर्ल्ड वाइड, नॉट स्पेसिफिक
not specific for any nation, any race, any religion, बल्कि it's for humanity and all creations, जितनी भी मखलूक़ात सब के लिए बेटे ये कुरान उतरा। तो ये मतलब है कुरान मजीद की आलमगीरियत। आलमगीरियत मीन सब के लिए। बोलो बेटे, आलमगीरियत का क्या माना है? आप आसान लफ्ज़ों में, भाई सब के लिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वो आपसे पूछेगा कुरान मजीद की आलमगीरियत जिक्र करेंगे, तो आप जवाब में ये बातें सारी लिख देंगे कि वो मखसूस इलाके के लिए नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेक्चर ख़त्म हो रहा है। मैं आगे बढ़ते हुए बेटे अगला शॉर्ट समझाना चाहता हूँ, अहद रिसालत में जमा व तदवीन कुरान। बेटे इधर देखो, अल्लाह ताला ने जब कुरान उतारा, ये बात बड़े ध्यान से सुन लें, अल्लाह ताला ने जब कुरान उतारा तो कुरान मजीद क्या इसी तरह किताब की सूरत में उतार दिया था? बल्कि आयतें उतरती, सूरतें उतरती, और फिर लोग ना जो नॉन मुस्लिम हैं वो मुसलमानों पर एक एतराज़ करते हैं कि ये कुरान तो ना बाद में जमा किया है मुसलमानों ने, इसमें ना कोई अपनी तरफ से बातें ऐड करके ये इन्होंने कुरान बनाया है। लोग एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं जी इनके नबी ने ये कुरान अपनी ज़िंदगी में कहीं लिखवाया नहीं था, यानी इधर से आयत उतरी और आका अलैहिस्सलाम ने कहीं लिखवाई नहीं, जबकि ये बात झूठ है। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में एक जगह थी, वहाँ पर एक संदूक रखवाया हुआ था, और जैसे जैसे आयतें उतरती आका अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, कभी ऊँट की हड्डी पर, कभी चमड़े पर, क्योंकि उस ज़माने में कागज़ तो नहीं था, कभी पत्थरों पर, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी चीज़ पर, यूँ लिखवा के उस संदूक के अंदर जमा करते चले जाते थे। और पूरा कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में खुद लिखवाया था। ठीक है, जमा व तदवीन कहते हैं किताब की सूरत में जमा करना। तो ये जो किताब की सूरत में है ये बाद में नहीं हुआ, बल्कि इसको लिखवाया आका अलैहिस्सलाम ने खुद था। इसको ज़रा हम पढ़ते हैं, यही बात है, इसको कहते हैं अहद रिसालत। अहद रिसालत मीन आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन मौजूद थे, या आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में जमा व तदवीन हो गई थी। बेटे बोलिए ज़रा, सुनिएगा यही बात सारी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन, और शॉर्ट बेटे एग्जैक्ट वर्डिंग में करना होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। जी सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही अक्सर सहाबा कराम को कुरान मजीद ज़ुबान नहीं याद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद कुरानी आयात को लिखवाने का खुसूस एहतमाम फरमाते थे, एहतमाम करते, खुद लिखवाते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में कुरान मजीद मुकम्मल लिखा जा चुका था। अहद रिसालत ही में कुरान मजीद अमूमन पत्थर की उन सिलों, चमड़े, खजूर की छाल, अनसिलों, चमड़े, खजूर की छाल और ऊँट के शाने की ऐसी हड्डियों पर लिखा जाता है जो खास, ऊँट के शाने की हड्डी, बेटे ये जो बैकबोन होती है ऊँट की, वो बहुत बड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा जाता था, जो खास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती थी। यूँ कुरान मजीद अहद नबी ही में मुकम्मल हिफ्ज़ होने के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ भी मौजूद था। लिहाजा जो कोई ये एतराज़ करता है कि लिखा हुआ नहीं था, दैट मैन इज़ टू मच झूठा, चूड़ा कूड़ा एंड मुसली। ठीक है, लो मेरे पुत्रों, ये शॉर्ट क्वेश्चन याद हो गए, कोई मुश्किल तो नहीं। कल हम इंशाल्लाह आखिरी लॉन्ग पढ़ेंगे।